A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and my channel is UGC NET Education Paper 2. So yes, today's topic is another research topic hai, research method hai, case study. Last time I have covered with the action research, applied research, right, phenomenology research, ethnography and narrative research. every मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है. सो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ केस स्टडी, वन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है केस स्टडी, दैट इज़ अनदर क्वालिटेटिव रिसर्च. सो बेसिकली जो केस स्टडी है इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव, yes, it is a form of qualitative descriptive research that is used to look at individual small group of participants or a group as a whole. So जिस चीज़ के हम केस स्टडी कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं एंड ग्रुप भी हो सकता है, राइट. सो दिस क्वालिटेटिव मेथड ऑफ स्टडी एम्फेसाइज करता है येस दैट डिटेल्ड कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस पे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन ए डिटेल्ड वे में इसमें स्टडी होती है. इसीलिए इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम of a limited number of events or conditions and their relationship. ऐसा नहीं है लिमिटेड इवेंट्स का मतलब है कि क्योंकि इसमें डिटेल्ड स्टडी होती है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को लिया जाता है, तो इसमें काफ़ी नंबर ऑफ इवेंट्स को रिमूव भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे घुसे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा. तो इस लाइन का यही मतलब है कि इसमें जो एस्पेक्ट्स लिए जाते हैं उनकी काफ़ी डिटेल्ड स्टडी होती है. Researchers have used the case study research method for many years across a variety of disciplines. It is a systematic inquiry into an event or a set of related events. यानी कि ये क्या है, एक सिस्टम से चलने वाला systematic inquiry method है. It refers the collection and presentation of detailed information about a particular participants or a small group. आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं केस स्टडी के लिए. It depends on the researcher और a research problem कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. स्मॉल ग्रुप से भी रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या उसमें काफ़ी सारे अगर नंबर ऑफ पीपल को ऐड करना है तो उसको भी देखना पड़ेगा. उसमें एक वन इंडिविजुअल से भी काम चल जाएगा. सो एवरीथिंग इज डिटेल बिकॉज इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. सो वी हैव टू टेक द एंटायर सिनेरियो को हमें टेक इनटू द अकाउंट में रखना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है. बिकॉज इट इज़ अ इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इन डेप्थ स्टडी, राइट. नाउ व्हेन इज द केस स्टडी एप्रोप्रिएट? अकॉर्डिंग टू द इन 2003, just a bit, 2003, a case study can be considered when the focus of the study is to answer how and why. When we need to answer how and why, we use the case study method. B part है, you cannot manipulate the behavior of those who involved in the study. You want to cover contextual conditions because you believe they are relevant to the phenomena, right? Yes, contextual conditions because you believe that they are relevant to the phenomena and under study, right. contextual का मतलब होता है that is depending on the circumstances, कि वो conditions जो हमारी circumstances पे dependent है और हमारी जो important setting हमने information collect करने के लिए करी है, event है जिससे हमें information मिलने वाली है, उसी के basis पे उसी को cover up किया जाता है. So contextual conditions होती है जिस condition में हमारी research चल रही है उसको as it is cover करना. The boundaries are not clear between the phenomena and context. के बीच में जो happen है और जो scenario है उसके बीच में अगर boundaries clear नहीं है तो case study की जाती है to know, ये जानने के लिए कि how and why it happens, right. So according to the end, this is the theory. Now what may be revealed, क्या इसमें आता है, क्या result निकल के आता है? Through case study researcher can closely examine the data with the specific context में, किसी एक specific context में information को closely क्या करता है, examine करता है. That is very important. In a specific context में एक specific situation को closely examine करता है. Through case study researcher can examine the contemporary real life situations and provide the basis
for the application of the ideas and extension of methods, right? So application of ideas on the basis of the life situation को इसमें cover up किया जाता है, क्योंकि case study जो है it can be आप किसी पास्ट इवेंट को उठा करके उस पर भी केस स्टडी कर सकते हैं, रिसेंट जो फिनोमिना है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो केस स्टडी आप कर रहे हैं वहाँ क्या होता है, आइडियाज़ का एप्लीकेशन होता है, मेथड्स का एक्सटेंशन होता है। थ्रू केस स्टडी रिसर्चर कैन टेस्ट theoretical models by using them into the real world situation। जो theoretical models available हैं उनको यूज़ किया जाता है to collect the information, to collect the data, right? क्योंकि case study is a very long method, तो उसमें हम एक मेथड को अप्लाई करके अपनी जो है डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो वी नीड some more methods or some mixed method to get the information or to get the data। Case study may not answer a question completely, but it will give some indications also and allow further elaboration, right? Somewhere अगर आपको एक क्वेश्चन का फुली आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आपको एक रास्ता ज़रूर दिखाने में मदद करता है, फॉर फर्दर इलेबोरेशन और हाइपोथेसिस क्रिएशन में हेल्प करता है। सो पूरी जो स्लाइड है उसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज दिस कि केस स्टडी मे नॉट आंसर अ क्वेश्चन कम्प्लीटली, मे नॉट, समझ रहे हैं आप, बट इट विल गिव यू सम इंडिकेशंस और अलाउ द फर्दर इलेबोरेशन, है उनको आपको एक रास्ता दे देता है फॉर द हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए, फॉर ए हाइपोथेसिस क्रिएशन के लिए, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वाई वी यूज दिस केस स्टडी, हम क्यों यूज़ करें? बिकॉज इट इज़ अ वेरी ग्रेट वे टू इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दे गेट द लर्नर इन्वॉल्व, क्योंकि केस स्टडी में लर्नर काफ़ी जो है हद तक इन्वॉल्व रहता है और एनकरेज करता है इमीडिएट यूज़ ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स। अभी अभी जो एक लर्नर सीखना शुरू किया है उसको भी केस स्टडी दी जाती है करने के लिए, वो खुद भी इन्वॉल्व होता है और काफ़ी एनकरेज होता है इमीडिएट यूज़ ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड स्किल को यूज़ करने के लिए। They differ from lectures or assigned the readings because they require the participation and deliberate application of the broad range of skills। देखिए जब भी केस स्टडी की जाती है, मैंने आपको बताया ना, इसमें काफ़ी जो है डिफरेंट क्या होते हैं, मेथड्स, है ना। डिफरेंट मेथड्स को हम क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड मेथड हो सकते हैं, मिक्स्ड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, मिक्स्ड डेटा जो है उसमें कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स, एक स्किल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट स्किल है वो यहीं पे यूज़ होगी, यहीं पे जज की जाएगी और यहीं पे क्या होगी, मोस्टली ट्रेंड हो जाओगे केस स्टडी करते करते, स्किल में ट्रेंड। केस स्टडीज़ हेल्प करती है रिसर्चर्स को मेक द डिफरेंस बिटवीन द नोइंग व्हाट टू डू एंड नोइंग हाउ, व्हेन एंड व्हाई टू डू इट। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है, जब आप केस स्टडी करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि जो नॉलेज आपने लिया है वो कहाँ, कैसे, कब यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, ऑल ऑफ द थ्री, जिसमें फर्स्ट में एक बड़ी रिवीजन भी कर सकती हूँ कि फर्स्ट है इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एनकरेज करता है इमीडिएट यूज़ ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स का। सेकेंड आता है जो ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स हैं उसको क्या करता है, एक्वायर करने में हेल्प करता है, उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हो वाइल डूइंग द केस स्टडी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप डिफरेंस कर पाते हो, जैसे कि एक जो टीचर है, जब एक टीचिंग जब वो टीचर बनने के जो प्रोग्राम से गुजरती है, लाइक जो प्री सर्विस उसकी ट्रेनिंग होती है वो थियोरेटिकल होती है बिफोर गेटिंग इनटू दी जॉब। जब वो जॉब में आती है, जब वो टीचर बन जाती है, तब उस प्रैक्टिकल जो थ्योरी है उसका यूज़ करना स्टार्ट करती है, तो वो क्या होती है, उसमें परफेक्शन हासिल कर जाती है। बस वही केस स्टडी है कि कहाँ आपको सिर्फ एक फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, बट वाइल डूइंग द केस स्टडी आप फील्ड नोट्स लेने जाते हो, उसके ऊपर रिसर्च प्रॉब्लम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम है, डेटा एनालिसिस है, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस, तो काफ़ी आप ट्रेंड हो जाते हो, बिकॉज इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि इतने टाइम तक आपको कंप्लीट करना है। तो आप हर एक जो है स्किल को अप्लाई करके, है ना, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के स्किल्ड हो जाते हो, परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। नाउ डिज़ाइन क्या क्या यूज़ होते हैं इसमें,
to obtain complete a picture of the participant as possible, जितनी पिक्चर हमें चाहिए। केस स्टडी जो रिसर्चर्स होते हैं कैन एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ केस स्टडी डिज़ाइन। जैसे मैंने आपको कहा ना कि केस स्टडी में हम मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड टेक्नोलॉजी, मिक्स्ड डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर करके उसके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम बाउंडेशन या किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं होती है। सिंगल केस भी ले सकते हैं, इट इज़ वेयर इवेंट्स आर लिमिटेड राइट टू सिंगल अकरेंस। द ड्रॉबैक ऑफ दिस डिज़ाइन का है इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ द कंक्लूजन। आप इसमें जर्नलाइज तक नहीं पहुंच पाते हो व्हेन द इवेंट्स आर रेयर। सिंगल केस डिज़ाइन मतलब जो घटना एक ही बार घटी है उसके बारे में आप जर्नलाइज काफ़ी कम कर पाते हो। इनएबिलिटी बोला गया है, इसका ड्रॉबैक है इनएबिलिटी, बिल्कुल मना नहीं है। समवेयर सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि समवेयर आप उसको जर्नलाइज नहीं कर पाते हो, लेकिन जब मल्टीपल आपकी वो चीज़ें होती हैं तो आप उसको काफ़ी रेप्लिकेशन आ जाती है, तो आप उसको रियल इवेंट, जैसे अब मुझे पता चला अर्थक्वेक का मैंने पता, अब मुझे नेक्स्ट अर्थक्वेक नहीं पता कब आएगा, है ना, नहीं पता। एक सिंगल अर्थक्वेक में मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर तो कर लिया लेकिन मैं कंक्लूड नहीं कर पाई। अगर मैंने लास्ट जो है ईयर्स के या लास्ट 2-3 ईयर्स के जो जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आए हैं, मल्टीपल केस को मैंने जो है सर्च किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ, मतलब मैं एक कंक्लूड कर सकती हूँ, मैं एक रीज़न तक पहुँच सकती हूँ। लेकिन वंस इन अ लाइफ अगर एक सिचुएशन घटी है तो मैं उस पर जर्नलाइजेशन तक नहीं पहुँच पाऊँगी, मैं सिर्फ एक वहाँ पे छोड़ दूंगी कि हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो। बट अगर वो इवेंट बार बार होता है तो यू कैन कंक्लूड दैट, तो आप अपने जो है प्रॉब्लम को कंक्लूड कर सकते हैं। यस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केस स्टडी? एक्सप्लेनेटरी, कि केस स्टडी जो है वो एक्सप्लेनेटरी हो सकती है, जहाँ पर seeking to answer a question that sought to explain the presumed causal links in a real life interventions that are too complex for the survey or experiential strategy। explanation क्या होता है? explain करना, किसी event को explain करना कि वो कैसे हुआ है और उसमें क्या क्या हो सकता था, क्या उसमें जो है उसके प्रॉस है और उसके कॉन्स हैं। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस स्टडी टाइप, टू एक्सप्लोर दो सिचुएशन जहाँ पर इंटरवेंशन बीइंग इवेलुएटेड हैज़ नो क्लियर सिंगल सेट ऑफ आउटकम्स। एक्सप्लोर करना, हमें कोई इवेंट है उसमें एक्सप्लोर करना है कुछ, तो हम उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव right, and multiple case study, it enables the researcher to explore differences within and between the cases। different cases जो हैं जब आप उस पर केस स्टडी करते हैं तो आप एक्सप्लोर कर पाते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन द केसेस, राइट। नाउ इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक सजेस्ट करता है रिसर्चर्स हु हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द केस स्टडी। इंस्ट्रूमेंटल होता है, इट इज़ यूज टू अकम्प्लिश समथिंग, किसी चीज़ को बस अकम्प्लिश करना है अदर देन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो इट प्रोवाइड्स यू सम इनसाइट इनटू एन इशू, ये आपको क्या करता है, एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। कलेक्टिव, इट इज़ सिमिलर इन नेचर एंड डिस्क्रिप्शन टू मल्टीपल केस स्टडीज़। यहाँ पे कलेक्टिव स्टडी अगर आपको करनी है उस टाइम पर भी आप केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं। Now what are the advantages and limitations? So first of all इसमें एक detailed information होती है, multiple methods can be used, it is a very lengthy। इसमें केस स्टडीज़ जो होती है काफ़ी लैक रिगोरस होती है क्योंकि काफ़ी टाइम होता है आपको क्रॉस चेक करने का। केस स्टडी रिसर्चर्स हैव नॉट बिन सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसेस है। अगर मैं जैसे मैंने एक अर्थक्वेक के ऊपर केस स्टडी चल रही है मेरी, राइट, और उसी बीच में एक और अर्थक्वेक जो है होता है या उसके और जो है घटना घट जाती है, तो मेरा जो है सिस्टम जो है, जो मैंने सिस्टमैटिक बनाया था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए काफ़ी सिस्टमैटिक नहीं चल पाता है। नॉट जर्नलाइजेबल, यस, बिकॉज इसमें जो केस स्टडी में जो डेटाज मिलते हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं, तो समवेयर यू कांट जर्नलाइज द सिचुएशन। सो कॉमन जो कंप्लेंट आती है वो यही है कि अभी
very difficult to generalize from one case to another. But case studies have also prone to overgeneralization, which comes from selecting a few examples and assuming without evidence they are typical and representative of the population. So basically इसमें जो इसका मिक्स है, यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो यही है कि हम इसमें कंक्लूड तक नहीं पहुँच पाते हैं, वी कांट जर्नलाइज इट. बस केस स्टडी होता है कि कैसे हुआ है, वी कांट कंक्लूड और जर्नलाइज दैट, राइट. स्टेप्स पढ़ लेते हैं इसके कि जब हम केस स्टडी करते हैं, देखिए ये कोई डिसाइडेड या प्री डिटरमाइंड स्टेप्स नहीं है, इट कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम अरेंज कर लेते हैं. लेकिन फर्स्ट हमें प्लानिंग तो हम हर चीज़ की करते हैं. आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि क्लाइंट्स कौन कौन से लेंगे, ब्रेनस्टॉर्म केस स्टडी टॉपिक, सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना कि कौन सा टॉपिक लिया जाएगा, considering the types of cases and why they are unique and of interest, कि आप क्यों उस टॉपिक को ले रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, उस पर काफ़ी रिसर्च करनी. देन आइडेंटिफाई व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड. जब आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. देन आइडेंटिफाई किया एनी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रिव्यू, कि क्या कोई डॉक्यूमेंट है जो रिव्यू के लिए चाहिए. लिस्ट करना क्लाइंट्स को टू बी इंटरव्यूड और सर्वे नेशनल फैसिलिटी बेनिफिशियरी लेवल्स तक हमने सारी उस पर रिसर्च करनी शुरू की कि जो जो क्लाइंट्स हैं वो क्या अवेलेबल हैं या रेडी हैं रिसर्च के लिए. सो एंश्योर रिसर्च विल फॉलो द इंटरनेशनल और नेशनल एथिक्स के बेसिस पे, कि जो आप जिन क्लाइंट्स के साथ आप रिसर्च कर रहे हो वो एथिकली उनसे अप्रूव लेना और उनके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उनसे कांटेक्ट में रहना, इन सब चीज़ों का जो है क्या किया जाता है, एथिकल रिसर्च कमेटी ध्यान रखती है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो परेशान ना हो, राइट. डेवलप करना इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स के या कौन कौन सी टेक्निक से हम उनसे जो है डेटास को कलेक्ट करेंगे. जैसे डेवलप करना, इंटरव्यू है ना, अरेंज करना, उन लोगों को बुलाना, कांटेक्ट करना, सर्वे प्रोटोकॉल्स, the rules that guide the administration and implementation of the interview or survey. Put simply, these are the instructions that are followed to ensure the consistency across the interview and increase the reliability of the findings. So interview के लिए बुलाना ताकि केस स्टडी आप कर सको, क्या वो अवेलेबल है, उनका टाइम सेटअप करना, सर्वे करना. डेवलप एंड इंटरव्यू गाइड, उनको एक गाइड देना, जो भी आप चाहते हैं उनसे आंसर्स रिक्वायर है उस गाइड में उनको देना. एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है पेज देना आप उनको, ताकि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आंसर करें. वेयर नेसेसरी ट्रांसलेट द गाइड इनटू लोकल लैंग्वेज, ये तो सारी बातें उनकी है. इंटरव्यू जब आप ले रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रखिए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिस तरीके से चाहिए, और ऐसी लैंग्वेज रखिए जो लोकल समझ पाए. ट्रेन द डेटा कलेक्टर्स, आइडेंटिफाई एंड ट्रेन करना कौन कौन से डेटास जो है वो रिक्वायर है. नाउ द कलेक्ट द डेटा, गैदर ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, सेटअप किया इंटरव्यूज़ को, सीक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेटर लिया उनसे, है ना, तभी तो लेंगे आप उनसे इंटरव्यू या कोई भी डेटा कलेक्शन के लिए. उनका कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है, उनसे परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ द रिस्पोंडेंट हैज़ कंसेंटेड, कंडक्ट द इंटरव्यू, जो कंसेंट पे येस कर दिया है उसने, तब आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं. एनालाइज द डेटा, रिव्यू किया सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो भी आपने डेटास को कलेक्ट किया है उसके ऊपर एनालाइज किया, एंड देन उसके ऊपर फाइंडिंग्स निकाली कि राइट द रिपोर्ट तैयार की, सॉलिसिट द फीडबैक दिया, रिवाइज किया एंड डिसेमिनेट किया. राइट. नाउ व्हाट आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से आप सोर्स जो है ला सकते हैं, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं. केस जो स्टडीज़ होती है टिपिकली रिलाई करती है मल्टीपल सोर्स से of information and methods to provide complete picture as possible. एक complete scenario, complete setting के लिए काफ़ी सारे sources की ज़रूरत पड़ती है. जैसे प्रोजेक्ट कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिपोर्ट है, चाहे वो क्वार्टरली है, मिड टर्म है, मॉनिटरिंग द विजिट, जाकर उनसे बात करना, जाकर विजिट लेना, मिस्ट्री क्लाइंट रिपोर्ट किसी को जाकर भेजना मिस्टीरियसली, फैसिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है, इंटरव्यू लेना, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन, एंड देयर आर लॉट मोर मेथड्स for collecting the data for your case study. Right now the last one is the element.
ये दिस इज़ द लास्ट स्लाइड जहाँ पर हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ केस स्टडी। व्हाट आर द एलिमेंट्स? फर्स्ट है केस स्टडी जो टिपिकली डिस्क्राइब करती है एक प्रोग्राम या इंटरवेंशन को जो कि पुट इन अ प्लेस टू एड्रेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम पे बेस्ड केस स्टडी है जहाँ पर प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या है आइडेंटिफाई करना, जहाँ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करना व्हाई दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे आप केस स्टडी कर रहे हैं, और हाउ दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, कैसे आपको वो प्रॉब्लम सूझी जिस पे रिसर्च करनी है, एंड वाज दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, क्या वो इफेक्टिव रिजल्ट देगी। ऐसा तो नहीं है कि बीच में आपको छोड़नी पड़ जाए या ऐसा उसका कोई कारण होगा जिससे आपकी इनकम्प्लीट रह जाए, तो ऐसी जो केस स्टडी है वो नहीं करनी चाहिए। स्टेप्स टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम, हमें उस प्रॉब्लम पे व्हाट वाज डन, वेयर इट वाज डन, whom एंड फॉर whom, रिजल्ट निकालना, व्हाट वर द रिजल्ट for the intervention, particularly the significant or unique results. चैलेंजेस देखना, बियॉन्ड रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकल के आया है, क्या जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना, एंड लेसन्स लर्न कि व्हाट लेसन्स आर लर्न आफ्टर दिस प्रोग्राम। पैक्ट प्रोग्रामिंग है, टेक्निकल है, फाइनेंशियल है। सो ये इसके अलावा इससे पहले भी हमने जो स्लाइड्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे से केस स्टडी के जो स्टेप्स हैं उसको किया है। सो यू कैन लीव दिस स्लाइड, इट डजंट टेक इन टू अकाउंट। सो नेक्स्ट, आई होप केस स्टडी इज क्लियर टू यू, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो बिफोर गोइंग दैट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कमिंग अप videos. So thank you so much guys, have a nice day.